Okay, let's discuss this one. Same method again. Heat given by water from 5 kg coming from temperature 20 to 0. So heat applied by water when it comes from its temperature comes to 0, its temperature becomes 0. Q will be ms delta T. It's 5 and specific heat कैलोरी में मेंटेन करते हैं. It will be 1 kilocalorie है ना, 1 kilocalorie into change of temperature कितना है 20 minus 0. Alright, so it is 100 kilocalorie. Final temperature minus initial है ना, 0 minus 20 है ना. It will be minus. It will be minus. Now same. Therefore heat gained by or received by ice is equal to plus ये जो supply करेगा it will be received by ice, that's 100 kilocalorie है ना. Same method जो पहले ऊपर किया था हमने, 1 gram ice and 1 gram water. Now what should be the next step? Next step will be now ice is at minus 20. ठीक है, so it will come to 0 degree first, then start melting. So heat received, heat required by ice to come to temperature 0 degree. है ना, to fall to 0 degree. ms delta T again, that will be कितना आइस का मास है m डैश कर दो, स्पेसिफिक हीट भी अलग है, तो कितना है 2 kg. 2 into specific heat is how much? It is 0.5, 50% of that. 0.5 into 0 minus 20. Minus plus हो जाएगा. Is it okay? Minus plus. So how much it is? 20 kilocalorie. Now balance heat is heat remaining. अभी balance नहीं है. Heat remaining 100 थी, 20 इसमें कंज्यूम हो गई. 100 minus 20, तो 80 kilocalorie. All right. So heat required to melt the ice. तो ये ice melted निकाल लेते हैं इससे. Therefore ice melted, mass of ice melted will be balance heat, heat remaining upon latent heat. कितनी 80. Latent heat of ice is also 80 kilocalorie per kg. 1 kg. ठीक है, 1 kg ice melt हो गई. Now heat is finished. Availability of heat is over. 80, 100 थी, 20 is coming, 20 is used to come to 0 and remaining is 80. That 80 will melt only 1 kg.
Therefore, total water will be 5 kg वो था plus 1, 6 kg. तो answer is B. Clear to everyone? Same method ये हमने जो किया था morning में ये question. 1 gram of water coming from will give heat from when it shift from 100 to 0. ऐसे इसमें भी यहाँ पे 20 है. When it shift to 0 degree from 20, it gives this much heat to the ice. Ice will now come to 0 first, then will start melting. तो 20 degree consume 20 कैलोरी कंज्यूम हो गए उसमें किलो कैलोरी 0 पर आने में. उसके बाद बची कितनी 80. That remaining heat divided by latent heat will melt the ice. It will be able to melt only 1 kg. तो 5 kg was water. उसमें ice 1 kg melt हो गई. Total 6 kg. What will be the temperature? टेम्परेचर कितना होगा इसका? Since ice is not melted fully, अभी 0 पे है ice. 1 kg ice is remaining. 0 degree पर. Water is also 0 degree. So there is no heat remaining to even melt. Temperature will not rise. So 0 degree at 0 degree Celsius. जब तक पूरी ice melt नहीं होती टेम्परेचर बढ़ता नहीं है. All right. This was the question of competitive level. Is there any difficulty in this, Bolo? No problem? No, No, sir. sir. So this is good question, concept developing के लिए. Okay. Now we'll start the heat transfer. Heat transfer of heat from one place to other place will be due to temperature difference. Okay. There are 3 modes of the heat transfer. One is by conduction. Suppose you bring the metal rod in contact with the fire, all rod will be heated up after some time, and you are at some distance here above the flames. Then you will feel the heat because of convection. Convection means molecules will get heated up here, air molecules, and they will transfer the heat to your hands. And if you are on the side also, there also you feel the hot, you feel heat on the side also. How the heat is transferring this side, it is by the third mode of transfer, which is the thermal radiation. It will be traveling this side in the form of electromagnetic waves. Any hot body will emit the electromagnetic waves in the form of infrared rays. Depending upon temperature, most of the time infrared rays are emitted from the hot body, but it can be other also. Okay. Sun can emit large number of electromagnetic waves because temperature is very high. It is emitting visible also, ultraviolet also, depending upon temperature, but low temperature pe infrared. So there are 3 modes of heat transfer. Conduction, isme molecules don't leave their position, they vibrate with larger amplitude and transfer the energy to the next. More vibration means more temperature. Molecules doesn't shift here. Here molecules shift. Here no medium is required. Vacuum may be possible. Energy coming from sun to the earth is through the vacuum only. So this is in the form of EM waves, electromagnetic waves. No molecules needed, no medium needed. इसमें medium है, इसमें भी medium है. Air molecules are there. So there are 3 modes. Now question is there, somewhere heat transfer should take place. Somewhere we don't want the heat transfer. We can give the example. No heat transfer is required through the body of refrigerator. Refrigerator की जो walls होती हैं, they are insulated. जिनको adiabatic walls भी बोलते हैं. They don't allow the heat transfer.
उसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होता है और जस्ट नेग्लिजिबल होता है वॉल्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर। वेयर एज किचन यूटेंसिल्स, जो बर्तन है किचन में जो हीटिंग जो कुकिंग में यूज करते हैं, दे शुड बी ऑफ हाईली कंडक्टिंग नेचर so that it should conduct the heat to the cooking material, है ना। So depending upon the requirement there is the transfer of heat, है ना। winter में body की heat should not be moving out, है ना। so we wear the woolen clothes or we wear such clothes that they reflect the heat, है ना, वापस body में वापस भेज दे, है ना। whereas winter में we can wear the dark clothes also. Sun rays should be absorbed by the dark color cloth, whereas summer may we wear the light color cloth, they are good reflectors, है ना। थर्मस फ्लास्क होता है जिसमें हम हॉट कॉफी वगैरह चाय रखते हैं या कोल्ड आल्सो, इन दैट डबल लेयर यूज करते हैं उसमें, तो इंसुलेटिंग, देयर इज नो हीट ट्रांसफर। सिल्वर कोटिंग होती है, अंदर की एनर्जी अंदर ट्रांसफर हो जाती है, आउटसाइड एनर्जी is reflected back to the outside, बीच में एयर गैप भी होता है। So we see so many things in our day-to-day life. Somewhere heat transfer is required, somewhere not required. रेडिएटर होते हैं या फिर एसी के जो कॉइल होती हैं बैक साइड में, दे आर गुड कंडक्टर, वो इसमें हीट ट्रांसफर होना चाहिए so that compressed air should get cooled down before being compressed to the next cycle of operation, है ना। कॉपर कॉइल रहते हैं उसमें। तो we'll see one by one all the three modes we are going to see. Conduction. Now conduction is the mode of heat transfer in which molecules do not leave their position. Molecules or atoms do not leave their place, their positions. They vibrate and hence transfer the energy to the next molecule, next atom, and so on. Suppose we keep the rod, this rod, insulated rod, यहाँ से insulated है, this at temperature T1 और यहाँ पे T2. T1 is greater than T2, तो यहाँ से heat transfer होगी in form of vibrations and it will come to the lower body temperature. T1 is the temperature of hot body and it is of large thermal capacity, means temperature should not drop it. थर्मल कैपेसिटी हाई होती है तो टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता, इसका भी कांस्टेंट ले रहे हैं। जैसे बॉइलिंग वाटर है, इधर आइस है, बॉइलिंग वाटर को मेंटेन कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, इधर आइस को 0 डिग्री पे मेंटेन कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, तो T1 ग्रेटर देन T2. नाउ इफ L इज द लेंथ ऑफ द रॉड, A is the area of cross section, T1 is the temperature of hot end and T2 is the temperature of cold end, है ना। Then at steady state, initially temperature rod का थोड़ा बढ़ेगा पहले, if you put the thermometer here, it will indicate the more reading, यहाँ पे कम, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम और यहाँ पे 0, यहाँ पर 100 दिखाएगा। तो but thermometers will get settled, उनकी रीडिंग सेटल हो जाएगी, that is called steady state. After some time there will be temperature gradient, यहाँ से कम होता जाएगा, यहाँ पे 100 और it will decrease to 0, but it will be whatever temperature are there, they are not changing. So at steady state, rate of heat flow is given by this Q by T. Heat upon time is called rate of heat flow. इसका symbol H है. It depends upon the area of cross section of rod and temperature difference and inversely proportional to length. And property of material, that is K. It is known as a thermal conductivity of material. And इसकी यूनिट लिख सकते हैं यहाँ से, ये तुम्हारा हो जाएगा वाट और ये यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, 1 मीटर नीचे आ जाएगा, केल्विन भी नीचे आ जाएगा. So you can write the unit of thermal conductivity with the help of other physical quantities. तो किस पे डिपेंड कर रही है रेट ऑफ हीट फ्लो? नेचर ऑफ मटेरियल, मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोर टेम्परेचर डिफरेंस एंड लेस लेंथ. लेस, जितनी लेंथ कम होगी उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी. क्लियर? तो कंडक्टिविटी देखते हैं, ये फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर इन एनी केस. अगर हमें
टोटल हीट ट्रांसफर्ड इन सर्टेन टाइम इंटरवल टी इधर आ जाएगा, फिर रेट चाहिए तो क्यू बाई टी, और इन ड्यूरेशन टी सर्टेन ड्यूरेशन तो टी विल शिफ्ट इट इधर, तो क्यू आ जाएगा इधर। क्लियर? दिस फार्मूला इज वेरी क्लियर। आर यू देयर? तुम लोग हो लाइन पर? Yes, sir. ओके, तो विल सी फर्दर। कंडक्टिविटी देख लेते हैं कि इसकी कितनी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, दे हैव द गुड थर्मल कंडक्टिविटी। लेट्स सी, एयर इज द पुअर कंडक्टर। यहाँ पे देखते हैं सिल्वर इज द क्वाइट गुड कंडक्टर। केस यूनिट यहाँ पे लिखा है, वाट को जूल पर सेकंड लिख सकते हैं और मीटर पर केल्विन। तो सिल्वर इज क्वाइट ए गुड, हैविंग गुड थर्मल कंडक्टिविटी for more than 400. Copper is the next one, aluminum is next, brass, steel, and lead further less, mercury further less. नॉन मेटल्स में देखो, इंसुलेटिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब जिस अपनी ईटा बोलते हैं जिसको घर बनाते हैं, है ना। कंक्रीट 0.5, बॉडी फैट इज पुअर कंडक्टर, फेल्ट ग्लास इज आल्सो पुअर कंडक्टर, आइस 1.6, glass wool further less, water further less, gases की और कम है। air is the very poor conductor, है ना, air is the poor conductor, sorry। water is also not the good conductor, and silver is quite high. So we should have the rough idea. All the metals are good conductor, non-metals are bad conductor, gases are further bad conductor। एयर, वोलन क्लॉथ जब हम पहनते हैं तो एयर ट्रैप हो जाती है उसमें बीच में, तो दैट एयर is doesn't allow the body heat to go out. All right, तो ये फार्मूला यूज करके हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला बस। थर्मोकोल ice box is cheap and efficient method for storing the small quantities of cooked food in summer. In particular, a cubical ice box having the side 30 centimeter, उसकी साइड 30 सेंटीमीटर है, all sides are 30 सेंटीमीटर, ये भी 0.3 मीटर कर देते हैं, ये भी 0.3 मीटर से, तो इसका एरिया 0.09 हो जाएगा। ओके, एंड थिकनेस 5 सेंटीमीटर, थिकनेस जो है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 5 into 10 to the power -2 meter thickness। Cubical, okay, 4 kg ice under, these are 4 kg ice is kept inside in the box. Find out the amount of ice remaining after 6 hours. T is equal to 6 hours. इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिमेनिंग मतलब जो मेल्ट हो गई वो माइनस, मेल्टिंग निकाल सकते हैं, माइनस कर देंगे बाद में। द आउटसाइड टेम्परेचर इज 45, यहाँ पर 45 है डिग्री सेल्सियस, और अंदर जो है 0 डिग्री सेल्सियस। आइस 0 पे दिए कि नहीं दिए? नथिंग इज मेंशन 0 डिग्री सेल्सियस, ले लो, देना चाहिए उनको। एनीवे, ice is at 0 degree Celsius. Now, coefficient of thermal conductivity of coal is this much, and ice ka that latent heat is this much. So how to do this question? What is the concept? Heat जो है अंदर बाहर से अंदर आएगी. This is T1, this is T2. Thickness जो है, this thickness will act as a length. यहाँ पे जो L है, ये वाला term, because heat is traveling ऐसे इधर आ रही, तो L is the length, यहाँ पे thickness will act as a length. इसकी जो thickness है that is length. Area भी दिया है 0.3, this 0.3, तो area will be 0.3 into 0.3, that is 0.09 meter square.
कंडक्टिविटी के भी दी, कितने टर्म्स रिक्वायर्ड है इसमें, चलो देखते क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए वो भी दिया है, थिकनेस विल एक्ट एज ए लेंथ वो भी दिया, एरिया भी दिया, के भी दिया, और टर्म्स आर गिवन, टाइम भी गिवन है इधर, इनटू 6 आवर्स, 6 इनटू 60 इनटू 60, तो हमें हीट मिल जाएगी 6 आवर्स में कितनी हीट गई, तो क्यू मिल जाएगी, क्यू इज इक्वल टू के ए T1 minus T2 upon L into 6 hours. नहीं 6 नहीं लिखना है, टाइम लिखना है, ठीक है, इज इट ओके? This heat will melt the ice. Ice melting will be m into L. तो mass of the ice melted मिल जाएगा. This should be equal to यहाँ पे लिखो mass of the ice melted into latent heat of the ice. One mistake I have done in this. Can anybody find out? ये समझ में आ गया, जो हीट ट्रांसफर होके आएगी यहाँ से, that will start melting the ice, melting शुरू कर देगी. That heat should be equal to mass of the ice into latent heat. Mass of the ice melted. M is the MIC is mice नहीं है वो, M अलग है, ice is separate. Mass of the ice melted. बोलो, one point deliberately I didn't tell you. What is that point? Can anybody pinpoint that point? One mistake has been done in this. बोलो, one point is left out in this. There are 6 surfaces, you know. इधर से भी हीट इंटर होगी, इधर से भी होगी, इधर से भी होगी, इधर से भी होगी, फ्रंट से भी होगी, बैक से भी होगी, टोटल 6 सरफेस है. तो यहाँ पे इंटू 6 करना पड़ेगा, 6 साइड से हीट इंटर होगी, तो दैट 6 into this, since 6 surfaces are allowing the heat to enter. Mass remaining निकलना, बस अभी कैलकुलेशन इज दैट, mass remaining is कितना था, 4 kg माइनस mass of the ice melted, निकाल के माइनस कर देंगे. Clear to everyone? Yes, sir. कैलकुलेशन लेनी है, बट ओनली थिंग यू शुड नॉट मिस द पॉइंट. एक तो यहाँ पर क्लू नहीं मिलता, ये हीट से क्या करें, इट इज द हीट व्हिच इज गोइंग टू मेल्ट इट, एंड 6 सरफेसेस वाला भी है. अभी भी देखो, थर्मोकोल बॉक्स में रखते हैं जो सेलर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, दे कीप द थिंग्स इन द थर्मोकोल बॉक्स, इवन आइस रखते हैं, आइस गोला वगैरह बनाते हैं, तो उसमें मेल्ट नहीं होते, पुअर कंडक्टर. देखते थर्मोकोल का कितना कम दिया है, कंडक्टिविटी इज क्वाइट ए लो वैल्यू, एयर से भी कम है ना, एयर की 0.02 है, लेस देन दैट. ऑलराइट, आगे देखते हैं, अभी इसको कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेना है इससे. ये क्या है, ये ब्रास बॉयलर है ना, ब्रास का बॉयलर है जिसमें बॉयल कर रहे हैं कुछ कुकिंग. बेस एरिया दिया है, ए दिया हुआ है, थिकनेस भी दिया, एल दिया है. इट बॉयल्स वाटर एट दिस मच रेट, है ना, 6 kg per minute. When placed on the gas, is to estimate the temperature of the part of the flame in contact with the boiler and thermal conductivity of brass. तो देखो ऐसे हम अगर उसका बेस का बना लें, यहाँ से बॉयल कर रहा हुआ है ना, यहाँ पे फ्लेम्स है, यहाँ पे बॉयल हो रहा पानी, तो ये 100 होगा, 100 होगा कि नहीं, वाटर बॉयल हो रहा है, ये T2 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा, यहाँ फ्लेम का T1 हो जाएगा हाई. ठीक है, तो हीट कितनी आ रही है, तो हीट कमिंग इज H is equal to Q by T equal to KA T1 minus T2. ये पर सेकेंड इतनी हीट आ रही है ना,
तो इट इज बॉइलिंग, तो m इंटू एल यहाँ पर भी है ना, तो ये पर सेकेंड की आ गई, तो यहाँ भी मास तो पर सेकेंड आ रही है ना, तो हीट पर सेकेंड इज इतना, और कितना बॉयल कर रहा है ये, हाउ मच, इट इज 6 kg पर मिनट, तो इसको सेकंड में कर देंगे, दिस इज पर मिनट, हीट पर मिनट, हीट पर सेकंड है, तो निकालने का एस्टिमेट द टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये m/t दिया हुआ है, दिस इन फैक्ट इज q/t पर सेकंड, यहाँ भी t जो है मिनट है, तो उसको ओके, हीट पर सेकंड, ओके, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज नथिंग बट ए पावर है ना, हीट पर सेकंड इज पावर, तो power is q/t, q is equal to ml, है ना, q is equal to ml, यहाँ पे छोड़ दो, तो यहाँ भी t आ जाएगा फिर, तो ये निकाल लो इतने कैलकुलेशन, ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, के ए T1 माइनस T2, T2 कितना लेंगे 100 बाई एल, और ये m by t into l, l is given, m by t is given, बट ये पर सेकेंड, ये t कितना पुट करेंगे पर मिनट, इसको 60 पुट करना पड़ेगा, और ये 6 लेटेंट हीट ये पुट कर देंगे, है ना, और ये आ जाएंगे, के पुट कर दो, के कितना दिया है, ये सब दिया हुआ है, ए भी दिया, बेस एरिया भी दिया हुआ है, थिकनेस भी रिएक्टर है, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ऑल द वैल्यूज T1 विल बी, फ्लेम का टेम्परेचर आ जाएगा, सर्टेनली इट हैज टू बी मोर देन 100 बिकॉज यहाँ पर 100 है, तो नीचे वाला टेम्परेचर, तभी तो हीट फ्लो होगी, तो टेम्परेचर इज कमिंग 238, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, जस्ट आस्क, पावर भी बोल सकते हैं इसको, रेट ऑफ हीट भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो और पावर भी बोल सकते हैं, हमने यहाँ पे देखो Q की वैल्यू ml पुट की है ना, Q इज ml और T एज इट इज, बट Q/T हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे मत लिखो, Q/T we can get it, Q/T is nothing but this much, तो इसको हमने Q/T को इधर शिफ्ट कर दिया, और ये एज इट इज रखा इधर, मूविंग फर्दर, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, अभी सारे पॉइंट बता दिए मैंने इसमें, कैलकुलेशन बेटर यू डू योरसेल्फ, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार में मिस्टेक होगी बट यू विल इम्प्रूव एंड स्पीड विल आल्सो गो अप, ओके, ये देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी बुक, सिमिलर क्वेश्चन, and it has been asked in competitive examination also many times. Refer diagram and find the temperature of junction of two rods if area of cross section of each rod is same. दोनों का A है, तो T1 is greater than T2, just we are maintaining same symbol, तो ये T निकालना है, तो this T will be less than T1 and greater than T2, तभी तो हीट ऐसे फ्लो होगी, तो रेट ऑफ फ्लो इन सीरीज, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में लिखेंगे इन सीरीज, सीरीज में क्या रहता है, जैसे हमने वी आर सीन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, सीरीज में करंट रिमेन सेम, यहाँ पे हीट करंट रिमेन सेम, इसको हीट करंट भी बोलते हैं, H/T, Q/T is also called heat current. In series, heat current is same, or rate of flow of heat is same. In series, rate of flow of heat, that is heat current,
remains same. H1 is equal to H2. जितना इस रॉड में H1 सेम विल बी इन दिस रॉड H2. तो H1 की वैल्यू पुट कर दो. A1A. हाँ, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होती. बोलो, कैन somebody tell me H1 कितना लिखें, H2 कितना लिखें? बोलो. H1 is up to here. Second temperature is T here. यहाँ पर T1 minus T, lower temperature T upon length L1 और K2A. यहाँ पे मिस्टेक होती है, नीचे लेंथ L2. यहाँ पे you do the mistake. यहाँ पे क्या होना चाहिए? Can anybody tell me what should be the temperature difference here? ये higher temperature minus lower temperature. Which is higher? T is higher or T2 is higher? T is higher, of course. इधर से इधर फ्लो होगा. यहाँ पर T minus T2. यहाँ पे मिस्टेक क्या करते तो you write T2 minus. जैसे यहाँ पे T1 minus T लिखा, यहाँ पे T2 minus T. That is the wrong. Higher temperature minus lower temperature. जैसे 1 and 2 यहाँ पे मैं अगर और क्लैरिफाई करूँ, let us see. T1 is higher temperature. यहाँ पे तो दिया भी है. कभी कभी हम T1 को TH लिखते हैं, higher temperature, और T2 को TC लिखते हैं, cold temperature, less temperature. But we are writing 1 and 2. तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी. अगर तुम यहाँ पे T2 minus T लिखोगे तो इधर हीट फ्लो होगी. इट इज नॉट ट्रू. ठीक है, तो बी केयरफुल हियर. यहाँ पे मैंने येलो मार्क कर दिया इसको. तो ए गोल्स, अगर ए इक्वल नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है, ए अनइक्वल भी हो सकता है. जैसे सपोज सेकंड रॉड इज ट्वाइस थिक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल. टेक्स्ट बुक में एरिया अनइक्वल है उसका, यहाँ पर दिया होगा. A1 A2 सब कैलकुलेट करना पड़ेगा. T2 विल बी इन बिटवीन. सपोज ये 100 है और ये 0 है, समवेयर इन बिटवीन, डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी ऑफ टू रॉड्स. इट मे बी 30 या इट मे बी 70, जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडक्टिविटी ऑफ टू रॉड्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आल्सो. बट यहाँ पे हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लिया है, तो वी कैन सॉल्व इट फर्दर. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. देखो हमें T चाहिए है ना, तो इसको ऐसा कर लेते हैं. K1 L1 अंदर T1 से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड में. K1 L1 अंदर मल्टीप्लाई किया T से. इधर K2 L2 अंदर मल्टीप्लाई किया T से, माइनस K2 L2 T2. ये पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया. ये पूरे टर्म को इससे और इससे मल्टीप्लाई किया. नाउ T वाले टर्म से एक तरफ कर लेंगे हम लोग और T1 T2 की एक तरफ. तो देखो यहाँ पर K1 by L1 इंटू T1, और ये T2 वाला टेम्परेचर इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस टर्म है वो. दिस इज L2 T2, और यहाँ पर T वाला टर्म इधर ले जाएंगे, कॉमन ले लेंगे, ये प्लस हो जाएगा. देखो ये वाला जब इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा. तो इट विल बी K1 by L1 plus K2 by L2. ठीक है, ऑलराइट. तो T के लिए सॉल्व कर लेंगे. T इज इक्वल टू K1 by L1 इंटू T1 प्लस K2 by L2 इंटू T2 अपॉन K1 by L1 प्लस K2 by L2. इन जनरल टर्म्स अभी वैल्यूज दी होंगी तो पुट कर देंगे. एंड देयर में बी डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आल्सो, वो भी पुट करना पड़ेगा था. तो सिमिलर क्वेश्चन इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक. ऑलराइट. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या याद रखना है इसमें? वी हैव टू रिमेंबर, इन सीरीज रेट ऑफ हीट फ्लो रिमेन्स सेम.
लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में सिमिलर क्वेश्चन. लेट मी शो यू दैट. जस्ट a minute. ये वाला क्वेश्चन है. इक्वेट कर दिया रेट ऑफ हीट फ्लो और टी नॉट के लिए सॉल्व कर. इसमें लेंथ सेम है क्या? लेंथ अच्छा, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम, लेंथ भी सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो ऐसे आ जाएगा. फिर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी भी निकालनी है. विल फाइंड आउट दिस आल्सो इन द सेपरेट क्वेश्चंस. और क्वेश्चन तो ये भी है अनइक्वल डॉट्स का है. इसमें भी सीरीज में हीट फ्लो रिमेन सेम, H1 इज इक्वल टू H2. अनइक्वल एरियाज है इसमें. A2 इज A1 इज ट्वाइस ऑफ A2. यहाँ पे 2 आ जाएगा. दीज आर द क्वेश्चंस. इस पे कंपटीशन में भी पूछते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11.7 एंड 11.6 यू कैन डू इट. ठीक है. दिस इज इम्पोर्टेंट, आई टोल्ड यू. ऐसे देखो कंपटीशन में ऐसा भी क्वेश्चन देखो जेई में पूछा था, सिंपल क्वेश्चन कि ये 0 है और ये 90, ये 90. टेम्परेचर ऑफ जंक्शन पूछा ये T. इसमें क्या लॉजिक लगेगा? वॉट एवर हीट कम्स फ्रॉम हियर, रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम दिस, सपोज ये H है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, H1 एंड H2. H will be equal to H1 plus H2. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ आइडेंटिकल रॉड्स हैं, रॉड्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल. K will remain same, K will get cancelled. Having the same cross section, A will get cancelled. And length, same length, L will get cancelled. It is one of the easiest question, even if it was asked in JEE, but most simple question. You can try it. I am not solving it. I have given you sufficient hint. You solve and send it to me. All right. Temperature of junction T ले लो. And what will be that? ये 4 ऑप्शन दिए. You can take the snapshot of this. Is there any problem in? Okay. Is there any problem? Can you hear me and see the screen? Just confirm karo, because there was a call. Yes, sir. Clear and no problem. Shall I continue? Yes, sir. Okay, 20 हो गया. I think देखो ये question we can skip this question. So many questions we cannot do it. तो एक one more question I want to tell you. थोड़ा सा extra point बता रहा हूँ इसमें NEET and JEE point of view से. बट कभी कभी बोर्ड में भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं. अभी 12th में ऐसी देखो, अगर सेम फार्मूला अभी हमने जो ऊपर सीखा था ना, एक वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल यू देयर, गोइंग बैक टू द रेट ऑफ हीट फ्लो. देखो रेट ऑफ हीट फ्लो में वापस चलते हैं. वन टर्म इज यूज्ड, टेम्परेचर ग्रेडियंट. टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? इसको हम डेल्टा टी लिख सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस को. इसको एल लिख सकते हैं. तो टेम्परेचर लेंथ डिस्टेंस से कैसे चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट. टेम्परेचर ग्रेडियंट. ठीक है. अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड कर देते हैं तो वो वो दैट ग्रेडियंट बन जाता है. मतलब विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद व्हाट रेट इट इज चेंजिंग, टाइम के साथ नहीं,
डिस्टेंस के साथ उसका क्या रेट ऑफ चेंज है। ऐसे ही इफ वी गो बैक टू द विस्कोसिटी, वहां पर v बाई एल आया था, तो v बाई एल को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल सकते हैं। लेयर्स के बीच का जो वेलोसिटी डिफरेंस है और उनके बीच का जो डिस्टेंस डिफरेंस है उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट वर्ड यूज किया था, वहां पे हमने यूज नहीं किया, यहाँ पे आई एम टेलिंग यू वेलोसिटी ग्रेडियंट। Shall I show you that point? Let us go back to the fluids if it is easily available. देखो फ्लूइड्स में कहाँ पर होगा, इट में बी मिडवे। हाँ यहाँ पे ये देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट, विस्कोसिटी पढ़ा था, दिस टर्म v बाई एल, यहाँ पे देखो दिस v बाई एल इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसकी डायमेंशन पूछ सकते हैं, तो यू शुड नो दैट वेलोसिटी ग्रेडियंट इज व्हाट। ऐसे पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ और डिस्टेंस। तो ग्रेडियंट मतलब डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में उसका रेशियो। ओके सॉरी, वी हैव जस्ट गॉन टू द अदर चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे हम। ओके ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट समझ में आ गया। नाउ इफ वेरिएबल कंडीशंस आर देयर, सपोज ये इसका वो चेंज हो रहा है, क्या बोलते हैं, डायमीटर चेंज हो रहा है या समथिंग समथिंग कंडक्टिविटी चेंज हो रही है ना, या एरिया चेंज हो रहा है, आपको डायमीटर से एरिया चेंज होना, तो वेरिएबल कंडीशन है। वेरिएबल कंडीशन में क्या लिखते हैं, यहाँ पे माइनस लिख आगे लगाते हैं, इसको डेल्टा टी लिखते हैं, यहाँ पे डेल्टा एक्स लिख देते हैं। ये सेम फार्मूला है चेंज, डिस्टेंस को शॉर्ट डिस्टेंस ले लेंगे, टेम्परेचर को शॉर्ट टेम्परेचर डिफरेंस ले लेंगे, और माइनस माइनस साइन मीन्स हीट की डायरेक्शन में टेम्परेचर ड्रॉप होता है, इसलिए माइनस डेल्टा टी आता है, माइनस को आगे शिफ्ट कर देते हैं। माइनस साइन मीन्स टेम्परेचर ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। एक वेरिएबल कंडीशन का क्वेश्चन आई वांट टू डू इट, यू सी हाउ इट इज डन। देखो जैसे ये अभी ये मैंने तो फार्मूला लिख दिया, फॉर वेरिएबल कंडीशंस रेट ऑफ हीट फ्लो इज गिवन बाय दिस। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, बड़ा कर नहीं सकते, दैट ऑप्शन हैज गॉन, कट कॉपी पेस्ट वाला, एनीवे। तो h इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस फॉर द स्मॉल डिस्टेंस dx। तो अभी देखो ये एक सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है, यहाँ पे हॉट सोर्स रखा है, सपोज हमने यहाँ पर कुछ हॉट सोर्स रख दिया और इधर से तो इंसुलेट कर दिया हमने दोनों साइड से, यहाँ पे लिख देता हूँ इंसुलेटेड, इंसुलेट कर ही देता हूँ। दिस इज इंसुलेटेड है ना, तो हीट किधर फ्लो होगी भी ऐसे जाएगी, हॉट सोर्स अंदर रख दिया, यहाँ पे सपोज हमने हीटर कॉइल लगा दिया, हीट इज फ्लोइंग आउटवर्ड। तो अंदर देखो एरिया, देखो यहाँ पर एरिया जो होगा, दिस एरिया सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का कम होगा, आउटसाइड में इतने रेडियस का सरफेस एरिया होगा, दिस सरफेस एरिया इज मोर। हॉलो ट्यूब ले लो सर्टेन रेडियस की, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस, तो आउटसाइड ट्यूब का जो सरफेस एरिया है मोर होगा। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल का, कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, कोई ट्यूब, ये एरिया, ये सरफेस एरिया ये वाला देखो ये कम है और दिस वन इज ग्रेटर, तो एरिया चेंज हो रहा है। तो छोटा सा थिन सिलेंडर ले लिया, थिन यहाँ तक, जिसकी थिकनेस dx है, ये टेम्परेचर डिफरेंस dt है, और ये छोटे छोटे सिलेंडर, ऐसे रेट ऑफ हीट फ्लो ऐसे ऐसे रह रही, सीरीज में हो जाएंगे ये छोटे छोटे थिन सिलेंडर, h रिमेन्स कांस्टेंट है ना, आउटवर्ड में h सीरीज में h रिमेन्स कांस्टेंट, तो h इज इक्वल टू माइनस के
Okay, can you hear me now? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Just wait अभी screen get it settled. देखते हैं host भी change हो गया होगा. Okay, I am with the two names. I am with the two, what is called, twice name is appearing here. One will go. Just wait. Okay, Piyush, please shift me host. Piyush, come. Make me host, please. Can you hear me, Piyush? Okay, thank you. Okay, now I can share the screen again.